Hello students, in this video lecture we will discuss about class 11 chapter number 6 work, energy and power, and our today's topic name is elastic potential energy. Elastic potential energy for spring due to its configuration. Okay, so before starting this video lecture, as always, we will discuss about last video lecture. You know, in the last video lecture, we had completed the gravitational potential energy as well as the mechanical energy conservation for gravitational force. Okay, so in last lecture, we had discussed about mechanical energy and the conservation of mechanical energy. Okay, so what is called mechanical energy? We had derived two types of different derivations for mechanical energy equation. That was, you know, K plus V is equal to always constant, and that is called mechanical energy E, where K is kinetic energy, V is potential energy, and the sum of kinetic and potential energy is equal to mechanical energy, right? So you know, in the case of freely falling body, during the world journey of the body, at each and every point, the kinetic energy or potential energy can be changed. But during the world journey, at each and every point, the mechanical energy will be always constant, right? And that is called the law of conservation of mechanical energy. Conserve होना मतलब कि कहीं पे भी उसका लॉस नहीं होना, राइट? उस एनर्जी का बचाव होना, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कंजर्वेटिव फोर्स, रेडी? फिर हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफरेंट तीन डेफिनेशंस की बात की थी. फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी कि भाई V इज इक्वल टू जहां पे -F इंटू H इक्वेशन फॉलो होगा, राइट? उस फोर्स को आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हो. सेकंड डेफिनेशन हम लोगों ने बात की थी कि इफ द कंजर्वेटिव फोर्स depends or the work done by conservative force, the work done by conservative force depends on only first position and last position, means two end points, not on the path, then the force is called conservative force. And the third definition was in the closed path, right? In the closed path, if work done is zero by the force, if the work done is zero by the force, then that force is called conservative force, right? And you know, frictional force is dependent on the path, so frictional force is not conservative force. Okay, and in last we had discussed about the potential energy, kinetic energy and mechanical energy at three different positions of the freely falling body at this height, between two end points, and at the last height. Okay, or you can say at the ground level. Okay, you know, at this height it will have only potential energy, that is mgh, and because it is stationary, right? It is stationary, so its kinetic energy will be zero, right? During the journey, it will have potential energy as well as kinetic energy, and near, or you can say close to the ground level, it will have only kinetic energy, and it will have potential energy is equal to zero. Ready? So again, I will repeat. When in the case of freely falling body, right, at the h height, it will have only potential energy mgh, and kinetic energy will be zero. So total mechanical energy will be mgh plus 0 is equal to mgh, right? Between two end points, right, during the journey, it will have both energies. It will have potential as well as kinetic energy. Ready? So you have to do the sum of potential and kinetic. That will be mgh plus 1 by 2 m square. And at the end point, or you can say close to the ground floor, right, it will have only kinetic energy, and that will be one half is half m square, and mgh will be zero. So total mechanical energy close to the ground level will be half m square plus 0 is equal to half m square. ठीक है? बाद में हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जीज के डिफरेंट हाइट पे सब केसेस को कंपेयर करके हम लोगों ने उसके वेलोसिटी के इक्वेशंस बनाए थे. ठीक है?
तो अब हम स्टार्ट करेंगे भाई सेम पोटेंशियल एनर्जी लेकिन स्प्रिंग के लिए, ठीक है, स्प्रिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि इस चैप्टर के अंदर अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, राइट, हमारा लोकेशन कहाँ पे होगा। तो हम लोगों ने, आपको याद हो तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो पोजीशन वाली जो पोटेंशियल एनर्जी थी वहां पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए उसका मैकेनिकल कंजर्वेशन लॉ, वो सब हम लोगों ने स्टडी किया। सेम चीज हम लोग स्टडी करेंगे स्प्रिंग के लिए, मतलब कि आप लोग स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करोगे, फिर से आप लोग स्प्रिंग के लिए मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी का लॉ भी स्टडी करोगे, लेकिन स्प्रिंग के लिए, राइट। अभी जो मैंने रिवीजन करवाया वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही था, लेकिन वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए था, राइट। सेम आप लोग स्प्रिंग के लिए भी स्टडी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग के लिए बहुत ही बेसिक चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है, तो उस बेसिक चीज को हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सभी चीजें वर्ड टू वर्ड आप लोगों को जीनित के अंदर काम आएंगी, खास ध्यान रखना। जहाँ पे भी स्प्रिंग का नाम होगा वहां पे आप लोगों को ये बेसिक काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका बेसिक से स्टार्ट करें तो सिंपल सी बात है भाई, if I tie one end of spring, if I tie one end of spring, ready, to the rigid wall, and if I stretch the spring to the right side, if I stretch the spring to the right side by giving external force, ध्यान रखना भाई, इस पूरी थियरी के अंदर हम लोग F को बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो अब आप ही बताइए भाई, अगर मैं स्प्रिंग को राइट साइड क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, तो ड्यू टू इस कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनावट ही ऐसी होगी, राइट, जिसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। वो स्प्रिंग क्या रहेगी भाई, पूरे की पूरी इलास्टिक रहेगी। तो उसके अंदर क्या होगा भाई, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होगा। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो आप ही बताइए क्या होगा, इसके अंदर एक ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होगा। ऑपोजिट फोर्स क्या करेगा भाई, वो अपने आप को स्ट्रेच होने नहीं देगा, जिसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। नाम वैसा काम होगा, रिस्टोरिंग, मतलब जो अपने आप को रिस्टोर करेगा कि भाई मैं अपने आप को स्ट्रेच होने नहीं दूंगा, राइट। तो आप ही बताइए इसके अंदर, मतलब कि स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, राइट, स्प्रिंग फोर्स, वो जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगा, राइट, वो कब प्रोड्यूस होगा, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे। जब आप उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में रहेगी, तो उसके अंदर कोई स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, और वो ऑब्वियस बात है कहां पे होगा भाई, ऑपोजिट साइड, रेडी। सेम चीज इफ यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, अगर आप लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो सिंपल सी बात है भाई, स्प्रिंग आपको सामने की ओर क्या करेगी भाई, धक्का लगाएगी, आपको पुश करेगी, राइट। मतलब कि उसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो वेन क्या होगा भाई, ऑपोजिट साइड होगा, रेडी, जिसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो अब सेम चीज हम इस रिस्टोरिंग फोर्स की क्या लिखेंगे भाई, डेफिनेशन, रेडी। when we apply external force on the body, this external force may be compressive or tensile, very compressive or tensile, then one opposing force will be produced in the spring that will, चलो भाई, उसके अंदर जो ऑपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, हमने जो बात की, राइट, वो फोर्स करेगा क्या, उस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। सो दैट फोर्स विल bring back the spring to its original position, रेडी। तो अगर आपको कोई पूछे भाई कि स्प्रिंग फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी,
तो वो क्या करेगा भाई, उसी स्प्रिंग को ब्रिंग बैक करेगा, मतलब कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आने की ट्राई करेगा। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड restoring force, or you can say स्प्रिंग फोर्स एफ ऑफ एफ। ठीक है, तो चलो भाई एक बात हमने क्लियर कर ली। तो चलो भाई स्प्रिंग की जब बात आएगी तो उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स की बात आएगी, राइट। और स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज कहां पे होगा भाई, आपके एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट साइड होगा, और वो क्या करेगा, स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आने की ट्राई करेगा। सेकंड थिंग, अब आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जिसको हम बोलेंगे गोल्डन लाइन, बहुत ही आपको काम आएगी, राइट। 11 के और भी एक चैप्टर के अंदर स्प्रिंग का थोड़ा बेसिक आएगा, तो वहां पे भी आप लोग को ये कंसेप्ट काम आएगा, राइट। This restoring force, or you can say spring force, ready, is directly proportional to the change in length of the spring and in opposite direction। चलो एकदम कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को प्रैक्टिकल ही सोचना होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगा, राइट, एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, राइट, आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स इन द स्प्रिंग, रेडी। तो वो क्या होगा भाई, जो स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी, यदि स्प्रिंग की जो लेंथ चेंज होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल में दे रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आप लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, राइट, स्ट्रेच कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो भाई, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, देख लो, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा भाई, उसकी ऑपोजिट साइड होगा, लेकिन होगा प्रोपोर्शनल, मतलब तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा भाई, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपको कोई आपके हाथ को खींचने की ट्राई करेगा तो आप लोग क्या करोगे भाई, अपने हाथ के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही प्रोड्यूस करोगे ना कि वो आपको खींच ना सके, राइट। तो सेम चीज स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी। अगर आप लोग कम उसको स्ट्रेच करोगे तो उसके लेंथ में डिफरेंस भी कम आएगा और उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी कम जनरेट होगा, लेकिन होगा कहां पे भाई, ऑपोजिट साइड। आप लोग प्रैक्टिकली देख लीजिए, मैं इस स्प्रिंग को एक्सटर्नली, राइट, बाहर की ओर फोर्स दे रहा हूं, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कहां होगा, अंदर की ओर। ध्यान रखना, हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के लिए बात कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहां होगा, अंदर की ओर, लेकिन स्प्रिंग की जो लेंथ में चेंज होगा वो कहां पे होगा, बाहर की ओर। तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ऑपोजिट साइड हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, राइट, कि रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, लेकिन स्प्रिंग की जो लेंथ में चेंज होगा वो राइट साइड की ओर होगा। सेम अगर आप लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे लगेगा, ऑपोजिट साइड, राइट, इस डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग की लेंथ होगी वो भाई क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल ही रहेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो वहां से हम लोग लिखेंगे इसका इक्वेशन एफ ऑफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस का मतलब आप लोग समझ गए, ऑपोजिट डायरेक्शन बताएगा माइनस, एक्स क्या बताएगा, द चेंज इन लेंथ, वेरी द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये चीज मैं आपको इसी लेक्चर में लास्ट में याद करवाऊंगा, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, चलो भाई आप लोग प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करोगे तो ऑब्वियस बात है वहां पे आप लोगों को कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग कांस्टेंट पुट करोगे के, ये इक्वेशन मोस्ट टाइम की इक्वेशन रहेगा। अगर स्प्रिंग की बात होगी तो ये इक्वेशन आपको बहुत ही काम आएगा, राइट। जी नीट के लिए ये इक्वेशन सबसे मोस्ट टाइम की रहेगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या रहेगा भाई, उसका कांस्टेंट। हम उसकी बात करेंगे वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, रेडी। चलो भाई के हम लोग यूनिट की बात करें, ठीक है, के लिए हम यूनिट की बात करें तो एस कहां जाएगा, नीचे की ओर, डिनोमिनेटर में, राइट। तो एफ बाई एस मतलब कितना होगा भाई, न्यूटन अपॉन मीटर। आप लोग देख लीजिए, न्यूटन अपॉन मीटर, इसका यूनिट भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग,
चलो भाई, किसी भी कांस्टेंट को अगर आप लोग इक्वेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो सेम यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मतलब होगा। जैसे कि अगर अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या रहेगा भाई, हाई ज्यादा रहेगा, तो उसका मतलब क्या होगा भाई कि आपकी जो स्प्रिंग होगी उसकी स्टिफनेस, समझ रहे हो, रफनेस स्टिफनेस, या तो वो स्प्रिंग क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी रहेगी। और अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम रहेगा तो मतलब आपकी स्प्रिंग क्या होगी भाई, सॉफ्ट होगी। रेडी? तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपकी साइकिल, आपकी बाइक और आपकी कार, तीनों के अंदर जो जंपर होंगे वो जंपर में वन टाइप ऑफ स्प्रिंग ही रहेगी। तो तीनों जंपर के आप लोग ही सोचिए क्या क्या के क्या रहेंगे भाई, के तीनों के अलग होंगे, राइट? आपकी साइकिल का के क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा। आपकी बाइक का के क्या होगा, थोड़ा स्टीफ होगा। और कार का जो के होगा वो क्या होगा, उससे भी ज्यादा स्टीफ होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी जो स्प्रिंग जो आप यूज कर रहे हो वो कितनी स्टीफ है या तो कितनी सॉफ्ट है। और उसकी स्टीफनेस या तो उसकी सॉफ्टनेस से ही पता चलेगा ना कि मैं उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उसके सामने उसकी लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, राइट? अगर आपके पास दो स्प्रिंग रहेंगी सेम लेंथ की, आप उस पर सेम फोर्स अप्लाई करोगे, लेकिन दोनों का के अलग होगा, तो क्या होगा भाई, दोनों की लेंथ में जो चेंज होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब कि इसकी लेंथ में जो चेंज होगा वो उसकी स्टिफनेस या तो सॉफ्टनेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये कांस्टेंट को आप लोगों को समझना है, कांस्टेंट को सिर्फ कांस्टेंट नहीं रखना है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी समझनी चाहिए जो आपको एग्जाम में जीनिट में काम आएगी। रेडी? तो ये बन गया आपके एमसीक्यू। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास कभी भी होनी चाहिए स्प्रिंग के बारे में। ये आप लोगों को और 2 लेक्चर, मतलब कि टोटल 3 लेक्चर में ये कंसेप्ट काम आएगा, राइट? और भी 2 वीडियोस में मैं ये सब चीजें आपको रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ की। रेडी? चलो भाई, सबसे पहले आप लोगों को स्प्रिंग के लिए डिफरेंट 3 केसेस सीखने होंगे, right? Here we will take one rigid wall. Ready? It is rigid wall. Rigid क्यों भाई? तो जब हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो ये जो वॉल रहेगी उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज इन द फर्स्ट केस, suppose in the first case the spring is its normal position। चलो भाई, यहाँ पे सपोज स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में होगी। हम लोग ध्यान रखना भाई, नॉर्मल पोजीशन को x इज इक्वल टू 0 बताएंगे, ठीक है? तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे हम लोग अपने समझने के लिए, आपके समझने के लिए एक्सिस बता देते हैं, राइट? राइट साइड हम लोग बोलेंगे प्लस एक्स, जो आप लोगों को पहले से ही पता है, राइट? राइट साइड को बोलेंगे प्लस एक्स, लेफ्ट साइड इट विल बी माइनस एक्स एक्सिस, राइट? एंड इट विल बी इट्स ओरिजिन, राइट? इट विल बी इट्स ओरिजिन। तो भाई राइट साइड की जितनी लेंथ होंगी, जितने फोर्सेस होंगे उसको हम प्लस बोलेंगे, लेफ्ट साइड के फोर्सेस और लेंथ को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है? तो अभी आप लोग देख सकते हो कि स्प्रिंग और ये जो ब्लॉक रहेगा, राइट, वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, राइट? आप लोगों को एग्जाम में थियरी किससे लिखनी होगी भाई? सिंपल सी बात है, in this figure we can see there one end of the spring is tied to the wall and the other end of the spring is tied to the block, right? And the block is in the normal position, that is x is equal to 0, right? वैसे सब आप लोगों को लिखना होगा। अब हम कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट, चलो if I stretch the spring, you can see if I stretch the spring, then I have to apply external force on the right side, external force on the right side। so you know, अभी हमने रिवीजन किया, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा भाई? ऑब्वियस बात है, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड रहेगा। लेफ्ट साइड क्या होगा भाई? नेगेटिव, राइट? हर एक चीज का आंसर रहेगा, आप लोगों को रटना नहीं है, ठीक है? और इसकी जो लेंथ में भाई इंक्रीमेंट आएगा, आप लोग देख सकते हो, राइट? वो हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा ना भाई। यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या रहेगा? सिंपल सी बात है, प्लस एक्स रहेगा। ये सब चीजें आप लोगों को ग्राफ में भी काम आएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट केस, इफ यू अप्लाई, you can see compressive force। compressive force, if you want to apply, you have to apply the external force on the left side, so external force will be negative, ready? So the restoring force or the spring force produced in the spring,
that will be in the right direction, and the right direction we are taking as positive. Ready? And here you can see there, right? We had made its displacement minus x because it is its length is getting decreased, right? उसकी लेंथ क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस एक्स. ठीक है. और अगर हम लोग इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, एम मतलब समझ गए भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप नहीं कर सकते. तो कई स्टूडेंट्स को डाउट होगा, चलो भाई मुझे तो इससे भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना ही है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, तू इसका डिस्प्लेसमेंट और भी ज्यादा कर सकता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगा कि अगर आप लोग इसको एक्सएम से ज्यादा क्या करोगे भाई, स्ट्रेच करोगे, इसको खींचोगे, तो क्या होगा भाई, स्प्रिंग आपको मना नहीं बोलेगी, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अब देख लो आप लोग, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा. तो उसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका शेप, राइट, उसकी डिजाइन, उसका जो मैंने अभी बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट, वो सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा. और स्प्रिंग जब उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी तो पूरी नहीं आ सकेगी. आप लोगों को कौन से लिमिट तक ये बात करनी होगी भाई, जहां से वो स्प्रिंग अपनी पूरे की पूरी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकती है. ठीक है. तो ये रहेगा आपका मैक्सिमम पोजीशन. तो मैक्सिमम पोजीशन मतलब कितना होगा, ख्याल आ गया. चलो नेक्स्ट बात करें इसकी प्रूफ की. तो मैंने आप लोगों को जो वेरिएबल फोर्स की बात की थी, राइट, 2-5 लेक्चर पहले, वेरिएबल फोर्स में मैंने आप लोगों को सबसे फर्स्ट एग्जांपल यही दिया था कि जब आप लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो या तो यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, तब आप लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे भाई. जैसे जैसे आप लोग उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करोगे, आपको अपना फोर्स इंक्रीज करता जाना पड़ेगा. ठीक है. उसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो वेरिएबल रहेगा. आप जितना फोर्स इंक्रीज करोगे उतना ही स्प्रिंग क्या करेगी, अपना रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है. तो आप लोग एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा. अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लिखूं तो आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा, अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स लिखूं तो आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा. तो मिस्टेक नहीं करना, राइट. ओके. सो द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. आप लोग खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं. द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. और स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा भाई, वेरिएबल रहेगा. फिर भी हम लोग यहाँ पे आपके ध्यान के लिए मैं लिख दे रहा हूँ. चलो भाई अब याद कीजिए, वेरिएबल जब आएगा तो हम कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे भाई, अपने गणपति बापा वाला इक्वेशन. मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, मैं हर बार आपको याद करवाऊंगा, व्हाई वी आर कॉलिंग दैट इक्वेशन गणपति बापा इक्वेशन, राइट. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस थियरी का मुहूर्त, इसका स्टार्टिंग हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से जो करेंगे वो इक्वेशन रहेगा गणपति बापा वाला. और उसका मैंने रीजन भी दिया, बिकॉज हियर द फोर्स इज वेरिएबल. रेडी. तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा भाई, W इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन, राइट, F इंटू dx. चलो भाई यहाँ पे मिनिमम पोजीशन क्या थी, 0, आप लोग देख सकते हो. फिर मैंने उसको xm तक स्ट्रेच किया, राइट. xm मतलब मैक्सिमम. रेडी. नेक्स्ट W इज इक्वल टू 0 इंटू xm. चलो यहाँ पे खास ध्यान रखना, हम लोगों ने Fs की बात कर रहे हैं, राइट, स्प्रिंग फोर्स. यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, Fs. चलो अभी मैंने आपको सिखाया, राइट, थोड़ी देर पहले कि Fs इज इक्वल टू क्या होगा भाई, माइनस kx. ठीक है. आपको काम आ गया, राइट, माइनस kx इंटू dx. चलो भाई सिंपल सी बात है, k इज कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट. तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, x इंटू dx. चलो भाई x का dx की रिलेशन में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा और वो पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में. मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके पास कितना पावर होगा, 1, राइट. सो W इज इक्वल टू माइनस k. चलो एक पावर आप लोग इंक्रीज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2. एंड 2 आप लोग कहाँ पे लिखोगे, डिनोमिनेटर के अंदर, राइट. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज xm. सो माइनस k बाई 2. चलो भाई 2 को हम बाहर निकाल देंगे. x square, one time you have to put maximum limit minus one time you have to put minimum limit at the place of x. यहाँ पे क्या होगा भाई, xm square minus 0, right. So the final equation is W is equal to minus 1 by 2. You can see minus 1 by 2 k.
इंटू एक्स एम स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्क डन फाइंड किया हो भाई मैक्सिमम पोजीशन के लिए किया हुआ है, राइट। मैक्सिमम पोजीशन मतलब एक्स एम, उसके बीच में आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट करोगे, कोई भी आप स्ट्रेच करोगे या तो उसको कंप्रेस करोगे, तो वहां पे आप लोग एक्स लिख सकते हो, राइट, एक्स। चलो भाई सेम जैसे मैंने आप लोगों को फ्री फॉलिंग बॉडी में बताया था कि वहां पे भी हम लोगों ने सबसे पहले वर्क डन फाइंड किया था, तो सेम क्वेश्चन आपको होगा भाई आप लोगों ने सर आपने तो उल्लू बना दिया कि आपने तो वर्क डन फाइंड किया, आपने क्या बोला था हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अब हम क्या लिखेंगे भाई अपनी गोल्डन वाली लाइन। गोल्डन लाइन मतलब जो कहीं पर रिपीट होगी, कौन सी गोल्डन लाइन भाई? द वर्क डन by the spring force, the work done by the spring force will be stored in the spring in the form of elastic potential energy, right। ये जो हम लोग वर्क डन करेंगे भाई वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, स्टोर होगा। और जब आप उसी स्प्रिंग को ऐसे खींच के रिलीज करोगे तो वही पोटेंशियल क्या होगी भाई, उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपनी गोल्डन लाइन लिखेंगे, राइट। The work done by spring force will be stored in spring, ready, in the form of इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, रेडी। तो यहाँ पे आप लोग W की जगह पे आप लोग V भी लिख सकते हो, ठीक है। उसका रीजन क्या रहेगा भाई, आप लोग देख सकते हो अपनी गोल्डन लाइन, राइट। द वर्क डन आई एम डूइंग ऑन द स्प्रिंग विल बी स्टोर इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों को मिल गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, राइट। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, राइट। चलो भाई तो अभी हमने जो ग्रुप किया उसकी हम बात करें, द इक्वेशन ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आप लोग के एक्स एम भी लिख सकते हो। एक्स एम मतलब क्या होगा, मैक्सिमम, और एक्स मतलब क्या होगा, कोई जीरो से लेके एक्स से मैक्सिमम के बीच की कोई भी पोजीशन, ठीक है। चलो भाई अभी मैंने आपको बताया था बेसिक में कि भी स्प्रिंग फोर्स और आपका एक्सटर्नल फोर्स दोनों ऑपोजिट साइड रहेंगे। मतलब कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो आपको वर्क डन मिलेगा वो नेगेटिव होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो आपको वर्क डन मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। So the work done by external force W is equal to हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्या लिखना होगा, प्लस, राइट। चलो अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की। चलो भाई अब आपको काम आएगा ग्राफिकल मेथड, याद कीजिए सबसे मोस्ट टाइम थी। वहां पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी करवाई थी। ग्राफिकल, तो अपने चैप्टर में ग्राफ आप लोग कौन सी क्वांटिटी का ड्रॉ करोगे, फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, राइट, फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। चलो अब खास ध्यान रखना, मोस्ट 90 पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, रेडी। यहाँ पे रहेगा फोर्स एफ ऑफ एस। खास ध्यान रखना भाई, एग्जाम में ग्राफ पूछेंगे, यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा एफ ऑफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ, राइट, प्लस एक्स माइनस एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एस, राइट। चलो भाई अब आप लोग याद कीजिए, मैं जो आपको इक्वेशन सिखवाया था एफ ऑफ एस के लिए कौन सा इक्वेशन था, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आप लोग देख सकते हो मैथमेटिकली, अगर एक्स आप लोग प्लस लोगे, एक्स प्लस लोगे, राइट, प्लस माइनस माइनस, एफ ऑफ एस आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। प्लस के सामने नेगेटिव कहाँ रहेगा, एफ ऑफ एस यहाँ पे। तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट अप्लाई होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप लोग एक्स को माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस, एक्स अगर आपका माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, एफ ऑफ एस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्लस। तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ मिलेगा वो आपको सेकंड
और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, तो उसका भी मैंने आपको रीजन राइट बता दिया। सेकंड थिंग, चलो आपको सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई इसका ग्राफ आपको क्यों स्ट्रेट मतलब लीनियर मिलेगा, उसका भी रीजन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को याद करना होगा, मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट हम लोग आगे जाके रिपीट करेंगे, याद है अभी। एफ ऑफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा भाई, उसका ग्राफ आप लोगों को लीनियर मिलेगा, बिकॉज एफ ऑफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट। इसका ग्राफ लीनियर रहेगा और सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को काम आएगी इसकी ग्राफिकल मेथड। चलो भाई, सपोज इतना जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस एक्स ऑफ एम, या तो आप लोग बोल सकते हो माइनस एक्स ऑफ एम, राइट, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो तो क्या रहेगा, आप लोग देख सकते हो प्लस एफ ऑफ एस, ठीक है, राइट। और यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर क्या होगा, माइनस एक्स ऑफ एम। चलो अब आप लोग जादू देखना ग्राफिकल मेथड का, सेम इक्वेशन आप लोगों को ग्राफिकल मेथड की मदद से 2 ही मिनट में पता चल जाएगा, राइट। आप लोग याद कीजिए अपनी गोल्डन लाइन, राइट। चलो अब इसका कुछ काम नहीं है, गोल्डन लाइन आप लोग याद कीजिए, द एरिया कवर्ड बाय एफ ऑफ एस वर्सेस एक्स ग्राफ इज इक्वल टू गोल्डन। कुछ याद आया भाई, राइट। और एरिया मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ट्राइंगल के लिए क्या होगा भाई, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ओके। चलो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। लेफ्ट साइड के लिए इसका बेस कितना होगा, माइनस एक्स एम, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स एम, एंड इसका एल्ट कितना रहेगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एफ ऑफ एस, रेडी, एफ ऑफ एस। चलो भाई फिर से आप लोगों को काम आ गया, एफ ऑफ एस मतलब कितना होगा भाई, माइनस केस होगा, देख लीजिए, एफ ऑफ एस मतलब क्या होगा, माइनस केस होगा। चलो भाई आप लोगों को क्या आंसर मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने एक्स को माइनस ले लिया एक बार, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, प्लस लिखोगे, राइट, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप लोगों को फाइनल मिल जाएगा हाफ के एफ एम स्क्वायर, रेडी। यहाँ पे हम लोग एफ क्या लेंगे भाई, प्लस, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस हाफ के स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो, फिर से हम वही इक्वेशन पे पहुंच गए, रेडी। चलो भाई अब आप खास ध्यान रखना, अगर आप लोगों को फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए, मैंने आप लोगों को इसलिए ही सबसे स्टार्टिंग में क्लेरिफाई किया था भाई, जब मैं बोलूं एफ मतलब एक्सटर्नल फोर्स और जब मैं बोलूं एफ ऑफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा वो क्या होगा, उसकी ऑपोजिट साइड होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स आप लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों क्या होंगे, प्लस ही होंगे। अगर आप लोग एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग नेगेटिव की ओर अप्लाई कर रहे हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अंदर की ओर ही होगा, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, दोनों नेगेटिव मिलेगा। अब आप लोग ही सर्च कीजिए दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव वाले कौन से क्वाड्रेंट रहेंगे, तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट, दोनों क्या होंगे भाई, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों नेगेटिव। तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए ग्राफ पूछा जाए तो सेम ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना होगा, लेकिन आप लोगों को राइट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, रेडी। अब हम बात करते हैं इसके अगेन रिवीजन की। आप लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड की मदद से भी फिर से यही इक्वेशन को प्रूव किया, राइट। तो ग्राफिकल मेथड कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्प्रिंग के लिए भी आप लोगों ने सेम इक्वेशन प्रूव कर दिया, राइट, ग्राफिकल की मदद से। तो हम लोगों ने टोटल दो टेक्निक्स से सेम इक्वेशन प्रूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें आप लोगों को वर्ड टू वर्ड काम आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे रिवीजन करके हम लोग स्प्रिंग के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करेंगे, जैसे हम लोगों ने फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए किया था, राइट, सम हाइट बिटवीन द हाइट एट द ग्राउंड, से हम लोग स्प्रिंग के लिए भी बात करेंगे, राइट, एट द मैक्सिमम पोजीशन, एट बिटवीन पोजीशन, एट द लास्ट पोजीशन, हम लोग लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग इसको खास रीड करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल, मैसेज और कमेंट एनी टाइम. Okay, so thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.